الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال نبينا مكرم صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل رواه أبو داود والترمذي. تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی تنہائی و اکتائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کے لیے نکاح کو مشروع قرار دیا ہے. مرد اور عورت کے درمیان جو شہوانی جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات کی برآری کے لیے، ان جذبات کی تشنگی کو بجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو صرف اور صرف ایک ہی راستہ دیا ہے اور وہ ہے نکاح. اسلام اس بات کا تاکیدی حکم دیتا ہے کہ جس بھی معاشرے کے اندر، جس بھی سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، ایسے لوگوں کی فوراً شادی کرا دی جائے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اگر تمہیں ڈر ہے، تمہیں اندیشہ ہے کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، تو ایسی صورت میں جو عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، جو عورتیں تمہیں بھاتی ہیں، ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے شادیاں کر لو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر 2 عورتوں کے درمیان، 3 عورتوں کے درمیان، 4 عورتوں کے درمیان تم انصاف نہیں کر سکتے، ان کے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے، ان کے ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، ان کو برابر کا وقت نہیں دے سکتے، فواحدہ، تو ایسی صورت میں ایک عورت سے شادی کرو، او ما ملکت ایمانکم، اور لوڈیوں پر گزارا کرو. ذالک ادنی الا تعولوا، اللہ فرماتا ہے بے انصافی سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن اس اجازت کو
اس بات کے ساتھ مشروط کر رکھا ہے کہ اگر آپ کے اندر اتنی جرأت ہے، آپ کے اندر اتنی بصالت ہے کہ تمام عورتوں کے ساتھ مساوات کر سکو، تمام عورتوں کے ساتھ برابری کر سکو، تو ایسی صورت میں 4 شادیاں کرنا، 2 شادیاں کرنا، 3 شادیاں کرنا، ورنہ صرف اور صرف ایک پر ہی اکتفا کرنا۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ لوگوں تم میں جو مرد اور عورت بے نکاح ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کی شادی کرا دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اسی طرح سے نیک بخت غلام اور نیک بخت لوڈیوں کی بھی شادی کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہوں گے، اگر وہ خلاش ہوں گے، اگر وہ کنگال ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات وسعت والی ہے، اللہ کی ذات جانکار ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اگر ہم اور آپ غور کریں تو بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سرپرست حضرات کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی ایسا لڑکا ہے جو بے نکاح ہے، جو سن بلوغت کو پہنچ چکا ہے، جس کی داڑھی اور مونچھ آ چکی ہے، اس کی نکاح کرا دو، اس کی شادی کرا دو۔ اور یہاں ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ لڑکی کے لیے سرپرست کی اجازت شرط ہے۔ کوئی بھی لڑکی، خاص طور سے مسلمان لڑکی، اپنے گھر سے نکل کر کے اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو کر کے کورٹ میرج نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی لڑکی اپنے گھر سے ناراض ہو کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا کر کے کسی مندر میں 7 مرتبہ پھیرے لے کر شادی نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی لڑکی اپنے گھر سے نکل کر کے کسی دوسری جگہ جا کر کے کسی مولوی صاحب سے نکاح نہیں پڑھا سکتی، اور مولوی صاحب کے لیے بھی جائز نہیں کہ ایسی عورتوں کا نکاح پڑھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے عورت کی نکاح کے لیے ولی کو شرط قرار دیا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کہ لڑکی ہے، شادی کسی اور لڑکے سے کرنا چاہتی ہے، سرپرست جو اس کا ہے وہ اس کی شادی کہیں اور دیکھ رکھا ہے، کسی اور لڑکے کے ساتھ سیٹ کر رکھا ہے، تو معاملہ وہاں پھنستا ہے۔ لڑکی چاہتی ہے میں فلاں لڑکے سے شادی کروں گی، باپ چاہتا ہے، ولی چاہتا ہے میں تیری شادی فلاں لڑکے سے کراؤں گی، تو ایسی صورت میں بھی میرے بھائی اور دوستوں لڑکی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنا قدم گھر سے باہر نکالے۔ ایسی صورت میں وہ لڑکی کیا کرے گی؟ لڑکی کے لیے شریعت اسلامیہ یہ صورت بیان کرتی ہے، ایسی لڑکی اپنے باپ کو منانے کی کوشش کرے گی، ایسی لڑکی اپنی فیملی کو منانے کی کوشش کرے گی، ایسی لڑکی A to Z کوشش کرے گی کہ کسی بھی طرح سے اس کا ولی مان جائے، اس کا باپ مان جائے۔ اگر مان جاتا ہے تو ایسی صورت میں شادی کرا دی جائے گی، لیکن اگر نہیں مانتا ہے، لڑکی نے تمام طرح کی کوششیں کر لی، باپ نہیں مان رہا ہے، ولی نہیں مان رہا ہے، پھر بھی لڑکی کو گھر سے قدم باہر نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکی کو چاہیے کہ وہ قاضی کے پاس جائے، اپنے گاؤں کے مکھیا کے پاس جائے، مکھیا کے پاس جانے کے بعد اپنے معاملات کو پیش کرے اور کہے کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا سرپرست، میرا ولی کہیں دوسری جگہ میرا شادی کرنا چاہتا ہے، لہذا میری شادی فلاں لڑکے کے ساتھ کرائیے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسی صورت حال میں جو قاضی ہوگا، جو گاؤں کا مکھیا ہوگا، اگر لڑکی کے اندر کوئی موانع شرعیہ نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گاؤں کا جو قاضی ہوگا، جو مکھیا ہوگا، وہ اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کرا دے گا۔ یہ شریعت اسلامیہ صورت پیش کرتی ہے، لیکن کسی بھی صورت میں کسی بھی لڑکی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا قدم بغیر سرپرست کی اجازت کے باہر نکالے۔ اور اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو نیک بخت غلام اور لونڈیاں ہیں ان کی بھی شادی کراؤ۔ موجودہ دور میں غلام لڑکے اور لڑکیاں موجود نہیں ہیں،
पहले के दौर में हुआ करते थे, जिसकी मुनासिबत से अल्लाह ने आयत में उनका तज़किरा किया है कि गरचे वो तुम्हारे मजदूर हैं, तुम्हारे नौकर हैं, बाजार से तुम्हारे लिए सौदा सरफ लेकर के आते हैं, तुम्हारी गंदगियों को पाको साफ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंसान है, उनके अंदर शहवात गरीज़ा मौजूद है, उनके अंदर सेक्सुअल इमोशन मौजूद होते हैं, लिहाजा ऐसी औरतों को भी शादी कराई जाएगी। और आखिरी बात जो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने बयान की, मेरे भाई और दोस्तों, वो काबिल गौर है। अगर ये सारे लोग गरीब होंगे, कल्लाश होंगे, कंगाल होंगे, भिखारी होंगे, इनके पास खाने की भी चीजें अगर मुतवफ्फर नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी इनकी शादी करा दी जाएगी। अल्लाह ताला अपने फजल करम से इन्हें मालदार कर देगा, इनको बेनियाज कर देगा। मालूम हुआ कि गुर्बत का बहाना बना करके शादी में ताखीर नहीं की जा सकती, गरीबी को बहाना बना करके शादी में ताखीर नहीं की जा सकती, बल्कि शरीयत इस्लामिया की तो ये तालीम है कि शादी इतनी सादगी के साथ की जाए ताकि तमाम गरीब और अमीर सारे के सारे बआसानी अपने बेटों और बेटियों की शादी कर सके। और 3 किस्म के लोग ऐसे हैं मेरे भाई और दोस्तों, जिनकी मदद करना अल्लाह रब्बुल आलमीन पर वाजिब है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सलासुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी मदद करना, जिनके लिए रास्ता हमवार करना अल्लाह पर वाजिब है। उसमें से एक शख्स है अल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, अल्लाह के लिए इलाही कलिमतुल्लाह की खातिर अपने घर से निकलने वाले की मदद करना अल्लाह पर वाजिब है। और दूसरा शख्स अल मुकातिब अल्लज़ी युरीदुल अदा, ऐसा मुकातिब, ऐसा गुलाम जिसने अपने मालिक को कुछ पैसे दे रखा है आजादी के लिए, लेकिन अभी कुछ पैसे बाकी है, अगर वो अदायगी की नीयत रखता है तो अल्लाह ताला उसके लिए वसाइल पैदा फरमाएगा। और तीसरा शख्स अन्नाकिह अल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ, ऐसा नौजवान जो निकाह के जरिए पाकदामन जिंदगी जीना चाहता है, निकाह के जरिए अपने कैरेक्टर की हिफाजत करना चाहता है, निकाह के जरिए बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहता है, अगर वो गरीब है फिर भी अल्लाह ताला ऐसे इंसान की मदद करेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, लिहाजा हमें और आपको चाहिए कभी गुर्बत को बहाना ना बनाए। अगर आपके घर में आपका बेटा जवान हो गया है, आपके घर में आपकी बेटी जवान हो गई है, तो ऐसी सूरत में पहली फुर्सत में उसकी शादी कराइए। हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सक्यूजेस बयान किए जाते हैं, बहुत सारे बहाने बयान किए जाते हैं, हमारा बच्चा तो एजुकेशन हासिल कर रहा है, अगर शादी कर देंगे तो इधर फंस जाएगा। ऐसी बात नहीं है मेरे भाइयों और दोस्तों। आप तारीख उठा करके देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कामयाबी शादी के बाद हासिल की है। यूपीएससी जैसी मुश्किल तरीन इम्तिहान, इससे मुश्किल तरीन इम्तिहान और कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसे भी इम्तिहानात को बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है जो पहले से शादीशुदा थे। लिहाजा शादी कीजिए बच्चों का अगर वो जवान है, क्योंकि शरीयत इस्लामिया बेहयाई से रोकती है। शरीयत इस्लामिया किसी भी सूरत में ये इजाजत नहीं देती कि एक मुसलमान अपने जज्बात का इस्तेमाल, अपने जज्बात को गलत तरीके से पूरी करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल इसकी इजाजत प्रदान नहीं देते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, शादी करना ये अंबिया किराम की सुन्नत है। जितने अंबिया किराम इस दुनिया के अंदर आए, तमाम के तमाम अंबिया किराम ने शादी की है, सिवाय 1-2 नबी के बारे में ऐसा आता है जैसे यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुए, जिनके बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती जिससे ये कहा जा सके कि उन्होंने शादी की थी। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों को छोड़ करके अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर जितने अंबिया और रसूल को भेजा वो सारे के सारे बीवी बच्चों वाले थे। अल्लाह कुरान में कहता है, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व दुर्रिया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले जितने अंबिया भेजे, जितने रसूलों को भेजा, वो सारे के सारे अंबिया और रसूल बीवी बच्चों वाले थे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐबगिरी करते थे, अल्लाह के नबी पर ऐब लगाते थे।
फरमाते थे ये कैसा नबी है जो शादी में इंटरेस्ट रखता है, ये कैसा नबी है जो शादियों में दिलचस्पी रखता है। इस नबी को चाहिए अपने नबूवत की नस्लो इशाअत करे, अपने रिसालत की नस्लो इशाअत करे, अपने दीन की नस्लो इशाअत करे। ये नबी तो शादियां कर रहा है, कैसा नबी है। उस वक्त अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाज़िल करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बतलाया कि यहूद इल्जाम लगा रहे हैं, ये यहूद आयतगिरी कर रहे हैं, इनको करने दो, तुम शादियां करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर मेरे भाई और दोस्तों 11 शादियां की हैं, 11 शादियां की हैं। और ये 11 शादियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास हैं। और अल्लाह के नबी ने 11 शादियों में से सिर्फ और सिर्फ एक लड़की ऐसी थी, आपकी एक बीवी ऐसी थी जो कुंवारी थी, बाकी सारी की सारी औरतें बेवा थी, मुतल्लका थी, जिनका कोई सहारा नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सहारा बनने के लिए उनसे शादी की है, सहारा बनने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की है। एक मरतबा रावी हदीस अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि कुछ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास आए। आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया, अल्लाह के नबी के इबादत से मुताल्लिक पूछा। तो अम्मा आयशा और दीगर अज़वाज मुतहहरात ने उन्हें बताया कि अल्लाह के नबी ऐसे ऐसे इबादत करते हैं। तो इन लोगों को लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आसमान, हम जमीन, हमारा तो नबी से कोई मुकाबला नहीं, जो कि नबी की इबादतों को इन्होंने कमतर तस्वुर किया, कमतर जाना। तो उसमें से एक ने कहा कि मैं हमेशा रोजा रखूंगा, कभी रोजा नहीं तोड़ूंगा। एक ने कहा मैं पूरी रात क़यामुल लैल करूंगा, कभी सोऊंगा नहीं। एक ने कहा मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं औरतों से अलग रहूंगा। जब ये बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया और फरमाया अंतुमुल लदीना कुल्तुम कदा व कदा, क्या तुम लोग हो जिन्होंने ये बातें कही है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी कसम खा करके फरमाते हैं वल्लाहि इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहू, अल्लाह की कसम मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हूँ, अल्लाह से खौफ पाने वाला हूँ और तुमसे ज्यादा मुत्तकी व परहेजगार हो। इसके बावजूद मैं रोजा भी रखता हूँ, रोजा तोड़ता भी हूँ, मैं क़यामुल लैल भी करता हूँ और सोता भी हूँ, वअतज़व्वजुन निसाअ, और मैं औरतों से शादी भी करता हूँ। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो इंसान मेरी सुन्नत से एराज करेगा वो मुझ में से नहीं है। मालूम हुआ कि शादी करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इसके अलावा तमाम अंबिया किराम की सुन्नत है, और इस सुन्नत पर हमें और आपको जल्द से जल्द अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, जब आदमी शादी कर लेता है तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़िल निस्फ़िल बाक़ी, जब आदमी शादी कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है, लेकिन जो आधा दीन बचा हुआ है उस सिलसिले में उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए, अल्लाह से खौफ खाना चाहिए। एक दूसरी रिवायत के अंदर है मन रज़क़हुल्लाहु इमरातन सालिहा फ़क़द आनहु अला शत्र दीनिही, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने नेक बीवी अता कर दिया गोया कि अल्लाह ताला ने उसके आधे दीन पर उसकी मदद कर दी। जो आधा दीन बचा हुआ है इस सिलसिले में उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए, अल्लाह से खौफ खाना चाहिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, शादी से मुताल्लिक हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि अपने बच्चों की शादी नेक औरतों से कराएं, नेक लड़कियों से कराएं। जब हमारी शादी नेक औरतों से नहीं होता, हमारे बच्चों की शादी नेक औरतों से नहीं होता, तो हमारे माशरे और समाज के अंदर अनारकियां फैलती है, हमारे समाज के अंदर इंतशार पैदा होता है। जब कोई गैर सालिहा लड़की घर में आती है, गैर नेक बीवी घर के अंदर आती है, तो मेरे भाई और दोस्तों घर के माहौल को खराब कर देती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी करके अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनका ये मानना है शादी करने के बाद उसका शौहर पूरा उसी का है। अगर वो शौहर अपने माँ बाप की देख रेख करता है तो लड़की को बर्दाश्त नहीं होता और लड़की घर बिगाड़ने के लिए पूरी कोशिश करती है। और बेचारा नौजवान अपनी बीवी की मोहब्बत में दीवाना हो जाता है। सामने नहीं देखता कि उसकी माँ है, सामने नहीं देखता कि उसका बाप है, और उसके साथ ऐसा ऐसी बर्बरता करता है, उसके साथ ऐसे अंदाज में गुफ्तगू करता है मानो वो माँ बाप ना हो, उसका गुलाम हो।
मानो वो माँ बाप ना उसका गुलाम हो। जिस माँ ने 9 महीने तक आपको पेट के अंदर रखा, 9 महीने तक पेट के अंदर रखने के बाद जब आपकी पैदाइश हुई, लड़के की आवाज माँ के कान के अंदर आई कि बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, माँ बड़ी उम्मीद से हो जाती है कि ये मेरा बेटा है, आगे चल करके मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आगे चल करके मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा, ये मेरा लाल है, मेरा सहारा बनेगा, मेरी इज्जत की दिफा करेगा, मेरी हिफाजत करेगा, मेरे इलाज मुआवजा पर ध्यान देगा। इधर बेटे की शादी हो जाती है, माँ को भूल जाता है, उसे लगता है कि माँ नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दिल बर्दाश्ता आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बीवी कभी भी आपके माँ बाप के मकाम को नहीं ले सकती है। याद रखें, माँ बाप आपके हैं, पुराने जमाने के हैं, हो सकता है उनकी मेंटालिटी से आपको तकलीफ पहुंचती हो, बहुत सारे लोगों को पहुंचती है। मैं भी शादीशुदा हूँ, माँ बाप की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि माँ बाप के साथ लड़ा जाए, माँ बाप के मकाम को न दिया जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बल्कि माँ बाप से अगर तकलीफ पहुंचती है तो एक बेटे को चाहिए कि माँ बाप की तकलीफ पर बर्दाश्त करे और माँ बाप को उस तक न बोले। कुछ भी कंडीशन हो, आपका बाप आप पे जुल्म कर रहा है, आपकी माँ आप पर जुल्म कर रही है, बस आप इतना याद रखें कि ये मेरे माँ बाप हैं, इन्हीं के जरिए हमारा वजूद हुआ है। आज जो हम पैरों पर खड़े हैं, आज जो हम पैरों से चल रहे हैं, आज जो हमारे पास मालो मनाल है, आज जो हमारे जिस्म के अंदर ताकत और कुव्वत है, ये माँ बाप का खून है जो तुम्हारे जिस्म के अंदर दौड़ता है। लिहाजा हर सूरत हाल में मेरे भाई और दोस्तों, हमें अपने माँ बाप का ख्याल रखना होगा, माँ बाप को उनका मकान देना होगा, गरचे वो हमें तकलीफ ही क्यों ना दे। कभी भी बीवी को माँ बाप से ऊपर नहीं रखना है, कुछ भी कंडीशन हो जाए। आपके घर के अंदर बीवी आए, आप उसको ये बात समझा दीजिए, क्या है मेरी बीवी, तुम्हारी इज्जत उसी सूरत में है जब हमारे माँ बाप इज्जत से रहेंगे, तुम्हारा इस घर के अंदर जलवा उसी वक्त रहेगा जब हमारे माँ बाप जलवे के साथ रहेंगे, हमारे माँ बाप खुशहाल रहेंगे तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहेगी। ये हमें और आपको अपनी बीवियों को समझाना होगा मेरे भाई और दोस्तों, वरना ये बीवियां आकर के गैर नेक बीवियां, सालिहा बीवियां ये घरों में आकर के घरों को बिगाड़ देती हैं, भाई भाइयों को जुदा कर देती हैं, माँ बाप से अलग हो जाती हैं। जिस माँ ने उससे अपने बेटे से उम्मीद रखी हुई थी, उस माँ को तनहा बाहर सोना पड़ता है और मियाँ बीवी बेचारे घर के अंदर मौजूद होते हैं, माँ बाप का जर्रा बराबर ख्याल नहीं होता। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए मेरे भाई और दोस्तों। हर एक नौजवान से ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने माँ बाप को उनका मकाम देंगे, कभी भी माँ बाप के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, माँ बाप से गुफ्तगू भी करेंगे, माँ बाप से इख्तिलाफ भी करेंगे तो अदब के दायरे में रहते हुए। जिस तरह से एक मुजरिम जब पुलिस के सामने होता है तो बहुत सिलो अंदाज में गुफ्तगू करता है, डर डर के गुफ्तगू करता है, वही अंदाज हमारा भी अपने माँ बाप के साथ होना चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई और दोस्तों, शादी करने के बहुत सारे फायदे भी हैं। पहला फायदा यह है कि शादी करने के बाद इंसान को सुकून मिलता है। अल्लाह फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे जिन्स से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम अपने बीवियों से सुकून हासिल करो। याद रखो नौजवानों, तुम्हारा सुकून तुम्हारी बीवी के अंदर है, तुम्हारा सुकून तुम्हारी धर्मपत्नी के अंदर है, तुम्हारा सुकून तुम्हारी अर्धांगिनी के अंदर है। याद रखें, अगर आप बेहयाइयां करते हैं, आप अय्याशियां करते हैं, आप कोठों पर जाते हैं, आप 200-400 रुपए में अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तशनगी को पूरा करते हैं, तो आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। आप अपनी महबूब और पसंदीदा लड़की से अगर फिजिकल भी हो जाते हैं, उससे अवैध संबंध भी रख देते हैं, फिर भी आपके दिमाग के अंदर जो सुकून होना चाहिए वो नहीं होगा। एक को मिलने के बाद दूसरे की तलाश में रहेंगे, दूसरी मिलने के बाद तीसरी की तलाश में रहेंगे, तीसरी मिलने के बाद चौथी की तलाश में रहेंगे, लेकिन कभी भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप निकाह करके एक लड़की को अपने घर के अंदर लाते हैं, वो लड़की जो आपको सुकून देगी, उस सुकून को अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। और अल्लाह ने कहा है वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा,
मियाँ बीवी के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उल्फत, मोहब्बत और रहमत के जज्बात रखे हैं। लिहाजा सुकून अगर चाहते हैं, सेक्सुअल कंफर्ट चाहते हैं, अगर चाहते हैं जिनसी तस्कीन आपको मिले, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप अपने बीवियों से सुकून हासिल करने की कोशिश करें, और बीवियों के जरिए ही आपको सुकून मिल सकता है। एक और फायदा यह है कि जब आदमी शादी करता है तो नस्ल की हिफाजत होती है। एक आदमी माकिल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, बयान करते हैं, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, है अल्लाह के नबी, एक लड़की है, बड़ी हस्बो नसब वाली है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसके अंदर एक ऐब है, वो लड़के को बच्चे को जन्म नहीं देगी। अरे अल्लाह के नबी, क्या मैं उससे शादी कर लूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं। दोबारा आया, अल्लाह के नबी, बड़ी खूबसूरत है, हस्बो नसब वाली है, अल्लाह के नबी मैं शादी कर लूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं। तीसरी बार आया उम्मीद लेकर कि हो सकता अल्लाह के नबी इजाजत दे दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकाफ़िरुन बिकुमुल उमम, ऐसी औरत से शादी करो जो औरत ज्यादा प्यार करने वाली हो और ज्यादा बच्चे को जन्म देने वाली हो। ऐसी औरत से शादी हरगिज ना करो जो बच्चे को जन्म ही ना दे। मालूम हुआ निकाह का एक मकसद नस्ल की हिफाजत है, नस्ल की बका है। मेरे भाई और दोस्तों, मौजूदा दौर में हमारा नजरिया ये बनता जा रहा है कि हम दो हमारे दो, और हमारे यहाँ मुसलमानों के अंदर ये चीज दर आई है। बहुत सारी लड़कियां इस बात अपने शौहर से ये कहती हैं कि शादी के बाद हम 5 साल 10 साल बच्चे पैदा नहीं करेंगे। मैं नौजवानों से कहता हूँ, अगर लड़की ये मुआहदा करती है, आपसे ये कहती है 5 साल 10 साल बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हम दुनिया में घूमेंगे, ऐश करेंगे, मस्ती करेंगे, ऐसी औरत से अगर आपने शादी कर लिया तो इसको तलाक दे दे, और अगर शादी नहीं हुई है तो ऐसी औरत के रिश्ते को कैंसिल कर दे, क्योंकि शरीयत इस्लामिया का ये मकसद है नस्ल की हिफाजत करना। याद रखिए, अगर आपकी नस्ल मौजूद रहेगी, आपके बच्चे मौजूद रहेंगे, तो इस दुनिया के अंदर भी आपको फायदा मिलेगा और आखिरत के अंदर फायदा मिलेगा। दुनिया के अंदर फायदा क्या मिलेगा? ये बच्चे आपका सहारा बनेंगे, ये बच्चे आपके बुढ़ापे का लाठी बनेंगे, ये बच्चे आपके इलाजो मुआवजा आपका इलाजो मुआवजा कराएंगे, ये बच्चे आपकी देख रेख करेंगे। लेकिन अगर ये आप इंतकाल कर जाते हैं, आप मर जाते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु, जब आदमी मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। लेकिन 3 अमाल ऐसे हैं जिसका सवाब उसे पहुंचता रहता है। उसमें से एक शख्स है वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, ऐसा नेक लड़का जो अपने मरे हुए बाप के लिए दुआ करे, अपने मरे हुए माँ के लिए दुआ करे। मालूम हुआ जब आपकी नस्ल आगे बढ़ेगी, आपकी नस्ल इस दुनिया के अंदर मौजूद रहेगी, तो ये नस्ल आपको फायदा पहुंचाएगी और आपके लिए दुआ करेगी। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अगर इत्तेफाक से आपकी नस्ल नहीं चलती है, आपके बच्चे हैं इंतकाल कर जाते हैं, या बहुत सारी औरतों का ये मसला होता है, प्रेगनेंसी ठहरती है और ठहरते ही बर्बाद हो जाती है, ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर किसी इंसान के 3 बच्चे मर जाते हैं, 3 बच्चों का इंतकाल हो जाता है, तो अल्लाह ताला अपने रहमत से ऐसे इंसान को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। और एक दूसरी रिवायत के अंदर है, कि जिस औरत के 3 बच्चे इंतकाल कर जाए, ये सारे बच्चे कयामत के दिन अपने वालिदैन के दरमियान और जहन्नम के दरमियान आड़ बन के खड़े हो जाएंगे। अगर बाप जहन्नमी होगा, माँ जहन्नमी होगी, ये बच्चे अल्लाह से इस्तिग़ा करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह ये मेरा बाप है, ऐ अल्लाह ये मेरी माँ है, लिहाजा तू इसे जहन्नम में दाखिल करने के बजाय जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला उन बच्चों की दुआ को कबूल करेगा और ऐसे माँ बाप को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। लेकिन जब हम शादी ही नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे नहीं होंगे, तो ऐसी सूरत में हमें और आपको जन्नत में कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? बहुत सारे नौजवान ऐसे जिनकी मेंटालिटी ऐसी बनती जा रही है कि वो शादी नहीं करना चाहते। उनको मालूम है कि जब 200-400 रुपए में हमारी जरूरतें पूरी हो रही है, तो हमें शादी करने की क्या जरूरत? ऐसे नौजवानों को अल्लाह से डरना चाहिए, ऐसे नौजवानों को अल्लाह का खौफ खाना चाहिए।
ایسے نوجوانوں کو علماء کرام سے ضرور ملنا چاہیے تاکہ علماء کرام ان کو شادی کی حکمتیں سمجھا سکے. بسا اوقات انسان لاشعوری میں بہت سارا کام کر جاتا ہے، لیکن جب اس کو بتا دیا جائے گا شادی کے یہ فوائد ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ شادی ضرور کرے گا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعہ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جلد از جلد شادی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى جل واكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح أقامت الصلاة أقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفوں کو درست کر لیں، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا لیں، بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑے. صفوں کی درستگی میں نماز کی بہتری ہے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء